Welcome back to the day 3 of the book The Secret Magic. अभी हमने फर्स्ट डे में बुक के बारे में जाना था। सेकंड डे में हमने एक्चुअली डे 1 की प्रैक्टिस की थी। तो आज हम कर रहे हैं डे 2 की प्रैक्टिस अफर्मेशंस की। डे 2 द मैजिक रॉक reflect upon your present blessing of which even men has plenty, not on your past misfortunes of what all men have some. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. When he told Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father as a dying child who used to gratitude rock to be grateful for his son's will. His son made a miraculous recovery. इस बुक में जो बात हो रही है एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब में और बुक भी है जो इससे पहले की बुक है द सीक्रेट। वो बुक क्या कहती है, आप जो भी चीज को आस्क करेंगे वो रिसीव करेंगे। और आप अगर किसी भी चीज में ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो आप उस चीज को अपनी लाइफ में और ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। तो आई रिकमेंड कि आप इस बुक को शुरू करने से पहले, मैजिक को शुरू करने से पहले द सीक्रेट बुक और द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री वो भी जरूर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in your palm of your hand that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without any sharp edges, not too weighty, and that fits really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from your riverbank, creek, or ocean or park. If you don't have an easy access to any of these places, then ask your neighbor, family, friends. You can even have a precious stone or stone already that you can use your magic rock. अब आपको इसमें करना क्या है, आपको एक छोटा सा कोई भी रॉक लेना है। वो आप जैसे पहाड़ी पत्थर होता है या कोई भी आप प्रीशियस स्टोन भी ले सकते हो। इवन मैंने ये क्रिस्टल लिया है, ये जीबू कॉइन होता है, ग्रीन एवेंचर इनका जीबू मनी एबंडेंस रॉक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में लेना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि वो एजी ना हो ताकि आप को वो चुभे ना। दूसरा, वो आपके मुट्ठी में यूं इस तरीके से आ जाए। इसको रोज आपको रात को सोने से पहले अफर्मेशन करनी है और ग्रेटिट्यूड करना है। मैं आगे पढ़ती हूँ। While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that things and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do. But through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best things that happen during the day, you will search through many good things that happen. In the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they will change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is the magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and you need to. अब हमें करना क्या है,
Be sure to read tomorrow's practice sometime today as you need to collect some photographs. Begin. ये नेक्स्ट वाले के लिए हमें पहले से बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डे 2 में प्रैक्टिस, एक तो डे 1 में जो हमें एवरी डे वी हैव टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड, 10 ब्लेसिंग हमें रोज लिखने हैं। उसके बाद मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेना है। Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best things that happened today. रोज आपको इसमें अपने हाथ में रख के इसको याद करना है पूरा दिन, ऐसी कौन सी चीज जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इवन आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि आज सुबह आप उठे हो, जिंदा हो, उसके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल। अपने आपके घर में पानी आ रहा था, आपने अच्छा खाना खाया, आपके पास आपके लव्ड वंस हैं, आप बोल पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, जिन भी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। आई एम श्योर जब आप एक कुछ ब्लेसिंग अपनी सोचना शुरू करोगे तो वो एक पे नहीं जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें पूरे दिन में ब्लेसिंग के रूप में दिखाई देंगी। और जैसे जैसे आप रोज इसमें एक एक ब्लेसिंग डालोगे, वो एक की जगह आपके पूरे दिन में आपने एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग तो आप वैसे ही गिन लोगे कि आपने अच्छा खाना खाया, अच्छा पानी है आपके पास पीने के लिए, यू हैव अ गुड बेड, हाउस, पीपल, जो भी लोग, जो भी चीजें, कार, लैपटॉप, गैजेट्स, मदर अर्थ, सन, वाटर, जो भी चीजें आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिली गई हैं, वो एक की जगह आपने ऑलमोस्ट 10 चीजें तो कम से कम आपने इसमें डाल दी। अब ये एवरी डे 28 डेज तक जब आप इसको करके सोओगे, तो आप अपनी लाइफ को देखोगे कि आपके जो भी कंप्लेंट्स या ग्रजेस थे, धीरे धीरे वो सब डिसअपियर हो गए हैं। और आपको 21 डेज अगर आप कोई भी चीज को रेगुलर करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और ये प्रैक्टिस हम 28 डेज तक करने वाले हैं, ताकि वो आप अपनी लाइफ को ही एक ग्रेटिट्यूड मोड में जीना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ में से कंप्लेंट्स और विक्टिम मेंटालिटी हटने लगेगी। तो ये बुक मेरे लिए भी एक रीवायरिंग है, बार बार अपने थॉट को याद दिलाना कि बी इन अ ग्रेटिट्यूड मोड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ओनली की टू सक्सेस। और इसके बाद हमें क्या करना है, से द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर बेस्ट थिंग्स दैट हैपन टुडे। इवन आपके साथ अगर पूरे दिन में कुछ गलत भी होता है, मतलब अगर आपको किसी बॉस से लड़ाई हो गई या पेरेंट्स से लड़ाई हो गई या सड़क पे चलते किसी से लड़ाई हो गई, तो भी आप उसको ग्रेटफुल ब्लेसिंग दे दीजिए, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि अगर आपके किसी से नेगेटिव टॉक भी हुई है, बात भी हुई है, तो मे बी उसने आपको किसी तरीके से ट्रिगर किया हो ताकि आप फिर से रुके और अपने आप को फिर से रीवायरिंग कर सकें। आप चेक कर सकें, मिरर कर सकें अपने आप को कि अब कहाँ आप किस चीज में आपको हीलिंग बाकी है या कहाँ आपको अभी अपने ऊपर और काम करना बाकी है। तो कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो रही है आपके साथ, और जो नेगेटिव आपको लग भी रही है वो भी एक ब्लेसिंग है। तो इसलिए हर चीज को एक ब्लेसिंग की तरह ही लेके चलिए। ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस हमें रोज रात को करनी है फॉर द नेक्स्ट 26 डेज। और कल का जो प्रैक्टिस है वो इसमें बता रहे हैं कि आप पहले से पढ़ लीजिए, तो मैं एक लाइन पढ़ लेती हूँ। ओके। आपको जो आपके 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं उनकी फोटोग्राफ अपने साथ लेके कल के सेशन के लिए आनी है। क्या करना है वो मैं कल के सेशन में करूंगी, मतलब नेक्स्ट डे के सेशन में हम ये करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम श्योर हम साथ में मिलके मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।